میاں والی فصل دیکھنے اور سننے والوں کو زبیر ہاشمی کی طرف سے السلام علیکم۔ ہم جو ہی یہاں ڈی سی آفس سائٹ پہ موجود تھے تو ایک بزرگ ہمیں ملے ہیں، اور یہ کافی بزرگ ہے ماشاءاللہ، لیکن معلوم ہوا ہے کہ یہ ابھی تک روزے بھی رکھتے ہیں اور ان کی یادداشت بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، پرانے زمانے کے واقعات بھی یہ بتاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ان سے بات چیت کرتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں موسیٰ خیل سے تعلق رکھنے والے حاجی خلاص خان۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ حاجی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، جی ماشاءاللہ اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ جناب، 23 جنوری 2025 کو 90 سال اللہ کے فضل سے مکمل ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، یہ بتا رہے ہیں کہ 3 جنوری 2025 کو 90 سال مکمل کر کے آپ 91 کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ہاں، جی کی طرف رب کی رضا کے مطابق۔ تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس عمر میں بھی پورے روزے رکھتے ہیں۔ جناب، میری گزارش یہ ہے کہ جب علماء صاحبان سے سنتا ہے کہ روزے کی جزا خالق کائنات وحدہ لا شریک اپنے دست مبارک سے عطا فرمائیں گے اجر، تو میں کہتا ہوں کہ معمولی انسان ہوں، اگر میں بھی ان کے حکم کی تعمیل میں گنتی قبولیت مل جائے تو پوری کر لوں تو اس کا فضل بھی ہوگا اور میری خواہش بھی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو آج کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا جذبہ پیدا کرنے والی بات ہے کہ اس عمر میں ماشاءاللہ آپ روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نظر میں پہنچتی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، بہت غلطیاں انسان کرا دیتا ہے، جبکہ رب تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو میں نے بہت کمزور بنایا اور شیطان کو بھی اس کی اپنی مسرت کے بعد اجازت دی ہے کہ جو بندے تم خراب کر سکو۔ تو ہم سے آپ کا نوجوانی انداز میں کوئی کو غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو اس کی تلافی کے لیے آخری عمر جب ہوش حواس ابھی تک میرا یہ بھی یاد ہے کہ تقریباً یہ نئے ہے تھل کا نام، یہ کارخانے والا پل اس وقت تعمیر ہی نہیں ہوتا، اسی وقت فرش زمین پڑی ہوئی تھی۔ والد صاحب کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، آیا اور شمال کی طرف سے ایک ہرکار مٹی اٹھا کر مغرب کی طرف ڈال رہا تھا۔ تو اس وقت یہ واقعہ سن 44 میں چالو ہوئے ہیں، تو بہرحال مجھے یادداشت اس کا بڑا فضل ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ کی خوراک کیا ہے؟ ماشاءاللہ اس وقت آپ خود چل پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یادداشت بھی ماشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو خوراک میں کیا خاص آپ؟ باقی مطلب میں جب پی ایس سے ریٹائرمنٹ کے بعد ادھر آیا تو میڈیکل کا گاؤں میں اچھا تفریح بتایا تھی، لیکن ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ریٹائرمنٹ ہوئی۔ پی ایف میں آپ ہوا کرتے تھے؟ 18 سال پی ایف نوکری کی اور کویت آپریشن پہ تھا، وہاں پر فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے ایک عربی گدو سے جو غلطی سے بچے کو بچاتا ہوا میرے کو اسے ایکسیڈنٹ اس نے آ کر فٹ پاتھ پہ مجھے ہٹ کیا، اس کی وجہ سے یہ فریکچر ہو گیا تھا۔ تو اب میں کوشش کرتا ہوں، میں نے کوئی رقبہ خرید کیا مسافر سے، وہاں پر میں نے پوچھا تو اس کا کو اچھا ذرا ہے کون سا ذریعہ ہے جہاں پر کوئی کمی بیشی نہ ہے، تو بتایا گیا کہ رجسٹری کرائیں۔ رجسٹری کرا کر انتقال کرایا، عمل درآمد ہو گیا۔ ایک پٹواری ہے، اس نے کہا
आगे ठीक है। इन बातों की तरफ आगे अभी चलेंगे। पहले जो मैं सवाल कर रहा था कि माशाल्लाह 90 साल से उम्र आपकी ज़्यादा हो गई, जी जी याददाश्त भी ठीक है, आप चलते फिरते खुद हैं। जी। मैं पूछ रहा था कि खाने पीने में क्या ख्याल करते हैं इस उम्र में, माशाल्लाह जो सेहत जो है आपकी, मैं खुराक का पहले बताएं फिर आगे बातें करते हैं। कोशिश होती है कि नमको वगैरह से नफरत करता हूँ, ठीक है। बाकी हल्की फुल्की सब्जियात या किस्म की चीज़ वो कोशिश करता हूँ कि अगर ना भी हों तो कमवाता हूँ। इन सब्जियों पे ज़्यादा जी अगर सादा और ज़्यादातर लवाजमा से परहेज करता हूँ सादा और खुराक उतना खाता हूँ जितना समझता हूँ कि जिंदा रहने की ज़रूरी है। या, ठीक है। तो अब आते हैं कि जो हमें बताया भी गया थोड़ी देर पहले या, कि वो जो आपके बता रहे हैं कि यहाँ पे आप आए पटवारियों के पास, या। वो सिलसिला फिर आगे किस तरह से? तो वो वहाँ पर गया तो उसने रजिस्ट्री के बाद वो अमल हो गया, उसके बाद फिर वो पटवारी तब्दील हो गया, दूसरा आया, उसने कहा कि ये आपका इंतकाल तो कच्चा होता है, ये नजरसानी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? इसमें गलती थी। इसका कौन सी गलती थी? रकबा भी ठीक था, मालिक भी ठीक था, पैसे भी ठीक हुए, सब कुछ इंतकाल भी हो गया। तो उसने बताया कि आपने जो जेर कब्जा रकबा लिया है उसका असल में रकबा था 37 कनाल और कुछ मरले, बाद में गलती से 17 कनाल मरले कुछ मरले रह गया, जिससे अब वो रकबा पूरा होता है तो उस मालिक का रकबा अभी बच जाता है माशाल्लाह की वजह से। उसने सालिम खत्म करना था तो आपका इंतकाल ख़त्म करते हैं। मैंने कहा वो मालिक से कहा, मैंने कहा भाई आपको पैसे भी देता हूँ, फसल भी देता हूँ, आपका रकबा बढ़ रहा है, मुझे वो पूरा कर दें। उसने पूरा कर दिया, उसका काम भी ठीक होगा। मैंने दोबारा करा दिया तो फिर मुझे पता चला कि ऐसा इल्म है, जब देखता रहता हूँ, तालीम भी है, पता नहीं चलता, मुझे शौक़ पैदा हुआ कि ये इल्म मुझे आना चाहिए बतौर ज़मींदार। तो मैंने उस वक्त कोशिश की 1975 में, ये सेटलमेंट का काम शुरू था, तो मैं वहाँ पर पटवारी के पास बैठकर उनको देखता था। और सबसे पहले ये है कि पुराना रिकॉर्ड जो है ना अंग्रेज़ों के दौर वाला, उसमें असल चीज़ मिलती थी। मैंने वो मुताला किया और उससे पता चला कि बंदात क्या हैं, आपके यहाँ तरीक़ाकार कैसे बनाते हैं, उस वक्त ख़ानदान यानी आपकी इस फील्ड में शौक और दिलचस्पी ने आपको इन मामलात का माहिर बना दिया हुआ है। तो अब हमें पता चला है कि मुख्तलिफ लोग, आप रोज़ाना मुझसे ख्याल से यहाँ मियाँ वाली कचहरियों दफातर में आते हैं और जो पटवारियों से मुतल्लिका मामलात होते हैं, तो आप लोगों की खिदमत करते रहते हैं, उनको रहनुमाई करते रहते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश ही होती है कि रब ताला को अपनी मखलूक सब बहुत प्यारी है। वो एक जो आदमी किसी की मदद करता है, रब ताला उसकी उम्र बढ़ाता है और खुश होता है कि उसने मेरे मदद की तकलीफ में मदद की। तो अभी मैं कल की बात है, चंद दिन पहले एक हिंदू था कलागांव का, वहाँ से वो तो मुसलमान तो हो गया, लेकिन उसके रकबा जहाज पुराने पड़े थे अंग्रेज़ों के दौर वाले, तो वो फिर रहा था और उसको पता नहीं चलता, पटवारी नहीं से ही हम नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं बता सकते। वो पिछले दिन मेरे पास इधर आया, रखू मैं उसको मैंने सारा मसला हल कर दिया कि अब वो बड़ा साहबान भी अक्सर पुराना रिकॉर्ड कम समझते हैं, उनकी इस सजा पर मैं उनके पास भी उनको गाइडेंस अता करता। यानी वकला को भी आप रहनुमाई फराहम करते रहते हैं? जी हाँ। तो आपकी तालीम कितनी है माशाल्लाह? तालीम तो खैरी डिग्री पूरी नहीं कर सका। 1956 में मैं 3rd ईयर, ये लड़कियों का जो कॉलेज है, पहले यहाँ पे था, हाँ, इसमें दिसंबर से देकर ईयर की कॉल आ गई और वहाँ पर वो 3rd ईयर तक मैंने
किया। बाद में एयरफोर्स में दाखिल हुआ, वहाँ पर सारा लिटरेचर इंग्लिश में था। सब जेट्स बम्बर सारे उन पे काम करता रहा। तो ये बताइए माशाल्लाह 90 साल से ऊपर आप उम्र हो गई है, तो इस अरसे के कोई यादगार वाक़यात, कोई दिलचस्प वाक़यात आपकी ज़िंदगी के? हाँ, वहाँ क्या तो यादगार वही बता रहा हूँ, उनको हिंदू मौजूद थे। मुल्क खैर टाउन में भी वहाँ पर खाना मुल्क खैर है इस वक्त सड़क के जरूर की तरफ, तो उसके शुमार में उनका पतंग बना हुआ था याने का, लेकिन वो डुबकी नहीं लगाते थे। पीतल की डोरी लेकर नहर से पानी उठाकर बाहर वो ऊपर डालते थे अपने? आते थे, उसको स्नान कहते थे। तो वहाँ पर एक कुआं वाटर सप्लाई था, उसमें उनके हिंदुओं की अलग टूटी वगैरह बनी हुई थी, जिसको मुसलमान हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, आपकी माशाल्लाह औलाद कितनी है? औलाद आपकी कितनी है? औलाद सर मेरे अल्लाह ताला ने 7 किसान अता किए थे। 7? या माशाल्लाह। बेटी कोई नहीं थी। 7 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं। या ठीक है। लेकिन बफर खुदाबंदी एक लड़का पुलिस में अटक में अफगानियों के साथ झड़प में दिन के 11 बजे अटक के बाजार में शहीद हो गया। पेशा करते हुए, उनसे मुकाबला करते हुए वो शहीद हो गया। अब दूसरा लड़का है, वो उसकी जगह पर तो प्रभु मिली थी जगह उसको। ठीक है। तो वो साबित इंस्पेक्टर है माशाल्लाह। और एक लड़का है मेरा इंग्लिश टीचर है उस वक्त हाई स्कूल में, और एक लड़का है सऊदी अरब हरम पाक में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काफ़ी साल हो गए कि वहाँ पर खिदमत कर रहा है। और एक लड़का है जो घर में है, वो बगैर तालीम के। एक लड़का पेट्रोलिंग पड़ोस में भर्ती है। ठीक है। तो माशाल्लाह इस वक्त 5 लड़के हैं, और मैं जो है उनको जो भी गाइडेंस हो। तो पोते पोतियाँ माशाल्लाह वो कितने हैं? जी पोते पोतियाँ आपके कितने हैं अब? यहाँ पोते पोतियाँ तकरीबन बड़ा लड़का है जो मासे साहब, उसके 2 लड़कियाँ और एक लड़की और 2 लड़के। ठीक है। और उससे छोटा जो है वो सब इंस्पेक्टर जो है, उसकी शादी कामयाब नहीं रही, उसने डाइवोर्स कर दिया। अब वो दूसरी शादी के चक्कर में वो भी हो जाएगी। तो आपने खुद एक शादी की थी? जी आपने एक शादी की थी? एक शादी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो दूसरा लड़का है जो ना जो बाकी 2 उनकी शादी से बाद में हुई। अच्छा। उनका एक का बच्चा है और एक की 2 बेटियां हैं। तो जो आपके बेटे हैं जी और जो उनके बच्चे हैं, सारों के नाम आपको आते हैं? जी सारों के नाम आपको याद है खुद? सारे सबके याद है? बिल्कुल हाँ। और दूसरा जो है कि कानून और पेंशन तो बहुत कम थी उस वक्त, तो बहुत मजबूत था, करेंसी 213 रुपये पे तब्दील हुआ था। अब मुझे पेंशन मिलती है तकरीबन 28,000 के करीब। ठीक है। मेरे साथ के रैंक वाले जो बालू वाले वो 2 लाख पे हैं, जो करेंसी वाली हो गए। किस रैंक पे आप रिटायर हुए थे? जी किस रैंक पे रिटायर हुए थे? मैं सीनियर ट्रैक पे। सीनियर ट्रैक पे। एयरक्राफ्ट। तो ड्यूटी कहाँ आपने की थी? ड्यूटी मैंने की थी अपना कुरंगी करीब कराची में। हाँ, और उधर मशहूर है अख्तर खान कराची। पेंशन लगी डबल। और इसके बाद चकलारा पे। ठीक है। फिर जंग के दौरान 65 वाली जंग के दौरान विशालपुर थे, वहाँ से डेपुटेशन पे पेशावर एयरपोर्ट पे उनको सपोर्ट के लिए गए थे। ठीक है। और तो वो 65 वाली जंग के कुछ याद है मनाजिर वाक़यात? जी जो 65 वाली जंग है, हाँ हाँ, उसके वाक़यात मनाजिर याद हैं आपको? इसके वाक़यात इतने काबिल फ़हम हैं कि रब के हुक्म से बताया जाता है कि
मौत का वक्त मुकर्रर है। एक आदमी 65 की जंग में सियालकोट में टैंकों की जंग शुरू थी, जान बचाकर एक ऑफिसर था पेशावर में, उसके यहाँ आकर रिहाइश पर जुड़ेगा। उससे पहले जो है ना पेशावर में कभी एयर अटैक नहीं हुआ था, लेकिन जब उसी रात को उसको मरना था वो आके सोया और उसने ऑफिसर ने उसको खुले सितंबर में बाहर लगा दी। वो सो रहा था, एक एयर का वो जहाज और गिराओं के ऊपर कश्मीर से इधर आके उसने बमबारी की एयरफील्ड पे। किसी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और एक बम जो फटा था ना उसका सप्लिटर टुकड़ा उठकर उसी बंदे सोए के सर में लगा और वो वहाँ पर फौत हो गया। सियालकोट से वो जान बचा के निकला, पेशावर पहुंचा। हाँ, और तो पेशावर में पहली दफा अटैक हुआ और पहली दफा अटैक हुआ और एक बात साबित हो गई रब के हुक्म वाली कि आपकी जगह मुकर्रर है, मौत का भी वक्त भी मुकर्रर है। वाह क्या बात है। तो ये रब के कारखाने का एक अजूबा आंखों सामने देखेगा। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातें आपसे यकीनन बड़ी मज़े की और भी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि आपने दफ्तरों में काम करने हैं तो मज़ीद आपका वक्त नहीं लेते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह आपको इसी तरह सेहत से चलता फिरता रखे, खुश रहें। कोशिश होती है कि किसी आदमी को कुछ भी मशवरा दे सकूं माशाल्लाह। तो उसमें शेयर करो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।